Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, read the following passage and answer the questions that follows. यहाँ पे हमें एक passage given है और जो given questions है उनको answer करना है. Passage read करते हैं. The mangrove tidal forests are found in the areas of coastals influenced by tides. Mud and silt gets accumulated on such coasts. Dense mangroves are common varieties with roots of the plants submerged underwater. The deltas of the Ganga, the Mahanadi, Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. In the Ganga-Brahmaputra delta, Sundari trees are found which provide durable hard timber. Palm, coconut, kiora, agar, etc. are also found grow in some parts of the delta. Royal Bengal tiger is the famous animal in this forest. Turtles, crocodiles, gharials and snakes are also found in these forests. Like this flora, India is also rich in its fauna. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of birds. They constitute 13% of world's total. There are 2,546 species of fish which account for nearly 12% of the world's stock. It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. Elephants are the most majestic animals among the mammals. They are found in hot wet forests of Assam, Karnataka and Kerala. One-horned rhinoceros are the other animals which live in swampy and marshy lands of Assam and West Bengal. Arid regions of the Rann of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively. Indian bison, nilgai, blue bull, chausinga, four-horned antelope, gazelle and different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkeys. ये हमें पैराग्राफ गिवन है जिसमें स्टार्ट होता है मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट से जो एक टाइप ऑफ वेजिटेशन है और एंड होता है इंडिया में जो फ्लोरल फौना स्पीशीज हैं वो बताते हुए कि इंडिया में हमें कौन कौन सी एनिमल स्पीशीज मिलती हैं. लेट्स सी द क्वेश्चंस. फर्स्ट है ऑन विच कोस्ट मड एंड सिल्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड. कौन से कोस्ट पे मड और सिल्ट एक्यूमुलेट होती है. सेकंड क्वेश्चन है वेयर इन इंडिया द सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. इंडिया में सुंदरी ट्रीज कहाँ पे फाउंड होते हैं. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट सुंदरी ट्रीज प्रोवाइड. जो सुंदरी ट्रीज हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं. और फोर्थ है वेयर द एलिफेंट्स आर फाउंड. एलिफेंट्स कहाँ पे मिलते हैं. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट. यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं ये मेनली मैनग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड है. लेट्स सी द आंसर. जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन on which coast mud and silt gets accumulated. In the deltas of the rivers Ganga, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri, mangrove forests are found. They are in coastal areas influenced by tides. तो जहाँ पे coastal areas है और जो influenced by tides होते हैं, tides जो होती है वो अपने साथ mud और silt लेके आती है. साथ ही जो ऐसी rivers है गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी जैसी जो rivers है, कावेरी जैसी जो बड़ी रिवर्स है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं. वो भी अपने साथ जो भी लैंड से आती है तो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और एट द माउथ ऑफ द ओशन ऐसे जहाँ पे रिवर ओशन से मीट करती है वहाँ पे डेल्टा बना करके ये जितना भी मड और सिल्ट और जो भी वो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं रिवर्स उसको वहाँ पे ड्रॉप डाउन कर देती है, वहाँ पे इकट्ठा कर देती है. तो हम देखते हैं कि मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट में ऑप्शन बी जो है मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि मड और सिल्ट अक्यूमुलेट हो जाता है ड्यू टू द टाइडल इन्फ्लुएंस. टाइड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट में मड और सिल्ट एक्यूमुलेट होता है. सेकंड देखते हैं वेयर इन इंडिया सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. इंडिया में सुंदरी ट्रीज जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं. इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड. They are mangrove tidal forest with their roots submerged under water. हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है इंडिया में वहाँ पे हमें सुंदरी ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं. बेसिकली हम वेस्ट बंगाल वाले एरिया की बात कर रहे हैं और ये जो ट्रीज है ये मैनग्रोव ट्रीज है, मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट है जहाँ पे इन ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो वाटर के अंडर सबमर्ज्ड होती हैं. इनकी रूट्स बाहर नहीं होती है और ना जमीन में होती है, ये पानी के अंदर होती हैं. तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इट इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा.
थर्ड देखते हैं व्हाट सुंदरी ट्रीज प्रोवाइड, सुंदरी ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। सुंदरी ट्रीज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रोवाइड द ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर एक्सेट्रा। दे ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। हम देखते हैं कि जो सुंदरी ट्रीज हैं जो बेसिकली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में हैं वो हार्ड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, और इसी एरिया में हम पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर जैसे और भी ट्रीज देखते हैं जो बाकी के डेल्टाज में जैसे गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इट इज ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। सुंदरी ट्रीज प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, वेयर एलिफेंट्स आर फाउंड। एलिफेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक एनिमल्स होते हैं। Let's see the answer. Elephants are the most majestic animals among the mammals. They are found in hot, wet forest of Assam, Karnataka and Kerala. असम, कर्नाटका और केरला के जो हॉट वेट फॉरेस्ट हैं ऐसी जगहों पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, और ये मैमल्स स्पीशीज के बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक एनिमल्स होते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन द हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ Assam, Karnataka and Kerala. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.